I'm Ayush, and with this video I'm starting this channel which aims at delivering the quality maths content to my viewers. And I'll be giving my email on my each video. अगर आपको पसंद आए, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहें, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं, and I can assure you I will reply within 24 hours. So without wasting any more time, let's start today's video. So I'll be starting this channel with one of the topics that is very much of heard, that सभी के लिए बहुत common topic है, and one of my favorites, which is not other than trigonometry. I'm sure आप सबने सुना होगा ये टॉपिक. So before going into trigonometry, let me brief a small introduction to angle. What is an angle? Everybody knows angle, but the main concept is, or the main question is, how do we measure the angle? How do we measure it? So to measure this angle, we have three systems. One is sexagesimal, another is circular, and the third is centesimal. Now, what are these? Sexagesimal measures angle in terms of degrees. Minutes and seconds. And now what is the relation between degrees, minutes and seconds? Okay, let me just write it down for you. "60 seconds make 1 minute." This is how we denote seconds and minutes. Seconds, and this is minute. Minutes. Then 60 minutes make 1 degree. Now let's go back to circular. Now circular is the most widely used system that we use to measure the angle. What is the circular system? I'm sure everybody would know the formula for the circumference of a circle, which is nothing but 2 pi r, or pi d, where d is the diameter and r is the radius of the circle. And the ratio, which is the ratio of circumference of the circle to its radius, that is 2 pi r upon r, will always be constant, which is 2 pi. Here we measure angle in terms of pi, or
We call it as radians. How do we connect circular and sexagesimal system? How do we do that? Two pi radians is equal to 360 degree. Now this is the result which you can use anywhere, and this is, I'm sure you are going to like learn or remember it by heart if you like keep on using it. Maybe it's new for you. So hence what we can say is pi radians is equal to 180 degrees, right? Now comes the centesimal system. This measures the angle in terms of grades. In this system, 100 seconds denote 1 minute. Hundred minutes denote 1 grade, and 100 grades will be equal to 90 degrees. Though this is just for the knowledge purpose, I know exams में कुछ questions आते हैं कई बार wherein we need to convert from one system to another. For example, convert 180 degrees to radians. So उसकी वैल्यू क्या होगी? Pi radians, as I have already shown you that. Or 30 degrees to, okay, let me just show you one example of that. Question. Convert 30 degrees to radians. How will we solve it? Simple. Two pi by 360 into 30 degrees, which is equal to pi by 6. So we can say that 30 degrees is equal to pi by 6 radians. Now when we are clear with the concept of measurement of angles, I think now I can easily move to trigonometry, the main topic of today. So before starting with trigonometry, let me tell you one thing. How I will be teaching is, I'll be starting with very basic and I'll be gradually moving to the advanced. And how will I make my videos? I'll make them alternatively. One video will be full of concepts. Another video would be the questions that are on the concepts that I've taught on the previous lecture. एक वीडियो कॉन्सेप्ट्स की
और उसके नेक्स्ट वीडियो उसमें क्वेश्चंस, जो कि इस वीडियो में कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन पे क्वेश्चंस बेसिक से शुरू होंगे और एडवांस तक जाएंगे. Now what is trigonometry? It is all about trigonometric ratios. I'll come to what are trigonometric ratios. I'll come to that in a while. बट हम करते क्या हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से? वाइड एप्लीकेशन भी है, बेसिक्स भी है, एडवांस भी है. इंजीनियरिंग में कहीं चले जाओ, बी इट योर कंस्ट्रक्शन, बी इट योर मैकेनिकल, बी इट योर इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर्स, और कॉल इट एनीथिंग, you will find trigonometric ratios there. Each and everything in trigonometry that we study, be it basic or be it advanced, everything revolves around these trigonometric ratios. Now, what are these trigonometric ratios? There are 6 trigonometric ratios, as we know. First is sin theta. Second is cos theta. Third is theta क्या है? Theta is any angle. Now, third is tan theta. Fourth is cosecant theta, secant theta, cot theta. Sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta, cot theta. Tan is also called tangent theta, and cot, similarly cot is called cotangent theta, and cos is cosine, and similarly sec theta is secant theta. What are they? लिख तो दिया है क्या? I'm sure every one of you must know right angle triangle. So let me draw one for you. This angle is 90 degree. Or just to repeat myself so that it can register in mind, or pi by 2 radians. Now let's call this angle as theta. कुछ भी बोल सकते हो, मैंने थीटा बोल दिया. What is sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta, cot theta? All these ratios are calculating using this triangle only. How? Let me mark this. P, A, B, C. H or B, then this is H.
AB, BC and AC. We have three sides. So any triangle has six elements, three angles and three sides. If we know any three of them, we can calculate the other three. How? In later part of the videos, I will be telling you how to do that. That is called solution of triangles. I will be coming to that. That is a bit of advanced trigonometry. I will come to that later. Now, what is AB? I have called AB is perpendicular. That is P. Then BC. BC is base. That is B. AC is hypotenuse, H. Now, how to calculate these ratios using these three sides? A simple formula, very simple formula. Now, what is this? This is how we calculate these ratios. I'll come to that. How, what is, maybe अभी लग रहा होगा कुछ भी लिखा हुआ है, but I'll come to that. What is that? I'll explain it. First ratio is sin theta. So sin theta would be the ratio of perpendicular to the hypotenuse. Sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse. Then cos theta, the ratio of base to the hypotenuse. What is that? B by H. Now tan theta, ratio of perpendicular to base. ये तीन रेशियोज कैलकुलेट हो गए, बाकी तीन तो करना है, इट्स वेरी इजी. y cosec थीटा और cosecant थीटा इज इक्वल टू 1 by sin थीटा इक्वल टू h by p. Secant theta is equal to 1 by cos theta equal to h by b. And last is cot theta equal to 1 by tan theta equal to b by p. ये लिखा है ना, sin थीटा इज p by h, cos थीटा इज b by h, tan थीटा इज p by b, and then it's reciprocal. h by p cosecant theta, secant theta h by b, cot theta b by p. याद कैसे करोगे इसको? यार मैंने जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरी टीचर ने मुझे निमोनिक बताया था, मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. हर उसका पहला लेटर, पी बी पी पी बी पी एच एच बी एच एच बी, और आपके सारे रेशियोज कैलकुलेट होते हैं. अब अनदर क्वेश्चन कि ये वाला एंगल तो थीटा हो सकता था. लेट मी कॉल इट अल्फा. अल्फा
रेशियोज तो इसके साथ भी हो सकते हैं, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कॉट अल्फा, सीकेंड अल्फा, कोसीकेंड अल्फा। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या अभी भी वो P बाय बी और वही सब रहेगा जो मैंने अभी तक बोर्ड पे लिखा हुआ है, या चेंज हो जाएगा? कॉन्सेप्ट यही रहेगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। कैसे? P और B होता क्या है? H हमारा देखो फिक्स रहता है, H हमारा हमेशा हाइपोटेन्यूज यही साइड होती है, बट P क्या होता है? जिस भी एंगल के रेशियोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस भी एंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर रहे हैं, हमेशा साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल इज P। जैसे मैंने जब थीटा लिया तो AB मेरा बन गया परपेंडिकुलर, BC बन गया बेस। अब जब अल्फा लिया तो मेरा BC बन जाएगा परपेंडिकुलर, AB बन जाएगा बेस, परपेंडिकुलर बेस। tan अल्फा क्या होगा? BC बाय AB, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बेस चेंज हो गया, बट फॉर्मूला वही रहा, फॉर्मूला वही रहेगा tan का, cos का भी। sin थीटा क्या होगा? tan, और sin अल्फा क्या होगा इस केस में? sin अल्फा की वैल्यू क्या होगी? P बाय H है। sin की वैल्यू क्या होती है? P बाय H। यहाँ पे BC अपॉन AB। दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये समझ आ गया तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड विद ट्रिग्नोमेट्री। नहीं समझ आया, डू कमेंट ऑन माय वीडियो, आई विल रिप्लाई। आई विल मेक श्योर कि मैं वीडियो बनाऊं, एक्सप्लेन करूं, इट्स माय जॉब। बट नहीं समझ आया, जस्ट लेट मी नो। अब एक और क्वेश्चन आता है इस पे, साइड्स तो चेंज होती रहेंगी, तो क्या वैल्यूज हर बार चेंज होंगी? नहीं, हर एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिक्स्ड होता है, इट्स अ फिक्स्ड नंबर। मैं बताऊंगा अभी किस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बट वो फिक्स्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ, व्हाट इट मींस, अगर आपने फॉर अ एक थीटा फिक्स कर दिया, फॉर अ गिवन एंगल, ratio of its sides would be constant। अभी अच्छा एक कुछ लिख रहा हूं मैं, थोड़ी देर में समझ आया क्या लिख रहा हूं, ऐसे ही देख लो, मान लो कुछ कुछ लिखा बोर्ड पे। sin 30 इक्वल टू हाफ। अगर ये एंगल थीटा 30 डिग्रीज हो जाए, मे बी एक एंगल है जिसके एंगल्स हैं 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ट्रायंगल पॉसिबल है। तो मैं क्या कह रहा हूं, sin 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है ऑलवेज। व्हाट डज इट मीन? जहां पर एंगल मेरा, जो ये वाला मेरा ट्रायंगल होगा 90, 30, 60, जब मैंने एंगल फिक्स कर दिया, आप उस साइड्स की वैल्यूज, वो साइड्स को कितना भी चेंज कर लो, कैसे भी जोड़ तोड़ लो, रेशियो सेम रहेगा उनका। मैंने क्या बोला था अभी, साइन की वैल्यू मैंने क्या बोली थी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जिस ट्रायंगल में, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री होगा, उस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा उसकी एक साइड की डबल होगी। रेशियो तो आया इज इक्वल टू, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो, इफ थीटा इज 30 डिग्री, देन sin is AB by AC equal to half. So I can say that AC is equal to twice of AB. This is the result. याद करने की जरूरत नहीं है AC equal to 2AB को। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबके एंगल्स के याद हो जाएंगे तो ये रिजल्ट अपने आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक इतना सबको समझ आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वेरियस एंगल्स।
एक टेबल बना रहा हूँ, गिव मी कपल ऑफ मिनट्स एंड आई जस्ट टॉक टू यू। पहली वैल्यू लेते हैं साइन, टेबल नहीं बनाता, आपके साथ साथ लिखता हूं, शायद याद जल्दी हो जाए। इस वैल्यू का क्या मतलब होगा? साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होते हैं? 0। साइन 30 डिग्री हाफ, अभी बताया भी था पहले भी, बट कोई बात नहीं, दोबारा होगा। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री 1। ऐसे ही टेबल कंप्लीट करता हूं। कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट। जल्दी जल्दी आपके साथ कंप्लीट करता हूँ। cos 0 कितना होता है? 1। इसका साइन के एंगल्स का ऑपोजिट होता है, बाद में धीरे धीरे देखेंगे कैसे आता है वो। cos 30 √3/2। cos 45 1/√2। cos 60 डिग्री 1/2। cos 90 डिग्री 0। अच्छा यार, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन में बताना भूल गया। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, tan 0 कितना हुआ? साइन बाय कॉस 0। tan 30 डिग्री 1/√3। सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर दिए। tan 45 सेम है 1। tan 60 डिग्री इन दोनों को फिर से डिवाइड कर दें, क्या आ गया? √3। और tan 90 1/0 infinity, or we can say not defined. tan 90 degrees is not defined. कोसिकेंट 0 अभी पहले में बताया था। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो यहां क्या होगा? 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट 30 डिग्री 2। कोसिकेंट 45 डिग्री √2। कोसिकेंट 60 डिग्री 2/√3। कोसिकेंट 90 डिग्री 1। सीकेंट 0 1। सीकेंट 30 डिग्री 2/√3। सीकेंट 45 √2। सीकेंट 60 डिग्री 2। सीकेंट 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। कॉट क्या बताया था? 1/tan थीटा नॉट डिफाइंड। cot 30 √3। cot 45 1। cot 60 डिग्री 1/√3। cot 90 0। ये टेबल अगर ट्रिग्नोमेट्री में आगे जाना है तो ये टेबल याद होना चाहिए। ये रेशियोज, फॉर्मूला बोलो, रेशियो बोलो, पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बनाते हैं, 2 ट्रायंगल बनाते हैं।
दो ट्राइंगल एबीसी एबीसी, पहले ट्राइंगल में एंगल क्या है 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, दूसरे ट्राइंगल में एंगल्स क्या है मेरे 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। कैलकुलेट करनी है साइड्स, नहीं बता सकते हमें क्या पता कितनी है, बट उनकी रेशियोज बता सकते हैं। इस ट्राइंगल में पहले मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं एक ट्राइंगल का, दूसरे ट्राइंगल का रिजल्ट लिखूंगा डायरेक्ट, एक का कैलकुलेट करके दिखाता हूं। AB अपॉन AC विल बी इक्वल टू sin 30, और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हाफ। ये एग्जांपल भी पहले भी दिया था, हाफ। अब BC अपॉन AC की वैल्यू क्या होगी, cos 30 इक्वल टू √3/2। इसका मतलब क्या हुआ, AB is to BC is to AC is equal to basically the ratio of all three sides क्या है 1:√3:2। इस रिजल्ट से मुझे क्या पता चला, मेरे जिस भी राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे ये तीन एंगल्स होंगे 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री, उन ट्राइंगल के तीनों साइड्स की रेशियो कांस्टेंट होगी 1:√3:2। सिमिलरली यहां पर मेरा AB is to BC is to AC क्या होगा, Any guesses? वन इज टू √2। इतना तो आप खुद डिराइव कर सकते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे आया। बट मैंने ये दो ट्राइंगल्स बताए क्यों, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं द गोल्डन ट्राइंगल्स। याद कर लो रिजल्ट, बहुत जगह आगे ज्योमेट्री में काम आता है। ये टेबल बाय हार्ट होना चाहिए, चाहो तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, नेट पे ढूंढ लेना, नेट पे हर जगह अवेलेबल है, एनसीईआरटी में बहुत जगह मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब इतना कुछ हो गया, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इतना तो पढ़ा दे, एप्लीकेशन क्या है, साइन कॉस टैन, क्या करें फिर, एप्लीकेशन देखते हैं। एक क्वेश्चन एप्लीकेशन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहते हैं, देयर इज अ टावर ऑफ हाइट h, वी डोंट नो कितनी हाइट है। देयर इज अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टावर व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन एज 45 डिग्रीज विद द टॉप ऑफ द टावर। ओके ठीक है, now he moves 30 meters towards the tower and then again he makes an angle of 60 degree as the angle of elevation with the top of the tower. Find the height of the tower.
समझ आ गया? लिखने की जरूरत तो नहीं है बोर्ड पे, या फिर भी मैं लिख देता हूँ। I'm reading it again. There is a tower of height h. A man makes an angle of elevation as 45 degree. He moves 30 meter towards the tower and makes 60 degree as an angle of elevation. Find the height of the tower. How will we do it? पहले डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम क्या कह रहा है? एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है h. यार सर ठीक है कोई नहीं. यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो कितना एंगल बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है मेरा? दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. कितना है ये? 45 डिग्री. अब वो थोड़ा सा आगे चला यहाँ पे, कितना चला आगे? 30 मीटर्स. यहां से कितना एंगल बना रहा है वो? 60 डिग्री. एच फाइंड करना है. कैसे करेंगे? ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन. ए बी सी डी. इन ट्राइंगल ए बी सी, let's call BC as x. BC as x. Now in triangle ABC, tan 60 कितना होगा? अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. अभी परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा? h. बेस क्या है? BC x. तो मैं ये लिख सकता हूं tan 60 डिग्री इक्वल टू h by x. tan 60 डिग्री कितना होता है? √3, which implies h is equal to x √3. अब क्या करें? एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी. इन ट्राइंगल ए बी डी, again same formula, we'll use tan 45 degrees is equal to h upon x plus 30. अब इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या हो गया मेरा? कंप्लीट BD, which is x plus 30 degrees. तो मैं लिख सकता हूं tan 45 is equal to h upon x plus 30. इसका क्या मतलब हुआ? h is equal to x plus 30. क्यों? tan 45 डिग्री is equal to 1. तो यार this is equation 1, this is equation 2. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू.
या तो इस इक्वेशन में से मैं h एलिमिनेट कर दूं या x एलिमिनेट करके उसमें पुट कर दूं, बट मुझे x फाइंड करना है, नहीं मुझे h फाइंड करना है, क्यों ना मैं x एलिमिनेट कर दूं। x इज इक्वल टू h माइनस 30, इसको यहां रख देता हूं, h इज इक्वल टू h माइनस 30 इंटू √3, h इज इक्वल टू √3h माइनस 30 √3। h की वैल्यू यहां से कितनी आई, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, h इज इक्वल टू 30 √3 अपॉन √3 माइनस 1। ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत बेसिक एप्लीकेशन है। टॉपिक अगर पूछना हो तो ये क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 10th में बहुत फेवरेट होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड में जरूर आता है। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम हाइट्स एंड डिस्टेंस। अभी इस वीडियो के बाद क्वेश्चन वीडियो नहीं निकालूंगा क्योंकि बहुत बेसिक है, कॉन्सेप्ट पे ही जाऊंगा। एक इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होगा, उसके बाद जो वीडियो निकालूंगा वो क्वेश्चन वीडियो होगा, ठीक है। एक वन लास्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आज का, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज होगा। व्हाट इज इट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज पढ़ा रहा हूं, आज मैं 3 आइडेंटिटीज बताऊंगा। कमिंग वीडियोस में you will study a lot of them, a lot of formulas and identities, and believe me you cannot move forward in trigonometry without knowing these identities. Without wasting any more time, let's start writing them. First is sin square theta plus cos square theta equal to 1, secant square theta minus tan square theta equal to 1, and last is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. तीनों आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, रख लो, ठीक है। एक होमवर्क, अभी इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंगल के रेशियोज का टेबल बताया था, डिफरेंट एंगल्स जो है यहाँ पे तीनों आइडेंटिटीज को वेरीफाई करो। Let me do one for you. Let's say theta is equal to 30 degrees. Let's do it for each one of them. First is sin square 30 degree plus cos square 30 degrees. sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो sin square 30 कितना हो गया 1/4 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका स्क्वायर कितना हो गया 3/4 is equal to 1. First is proved. Let's move to the second one.
secant square 30 degree minus tan square 30 degree. secant 30 कितना होता है 1 by cos 30. cos 30 कितना होता है √3/2. तो secant 30 कितना हुआ 2 by √3. उसका स्क्वायर कितना हो गया 4/3 माइनस tan 30. tan 30 कितना होता है 1 by √3. उसका स्क्वायर कितना हुआ 1/3. आंसर अगेन 1. सेकंड इज आल्सो प्रूव्ड. थर्ड वन, कोसिकेंट स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30. कोसिकेंट 30 कितना होता है 2. स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस कॉट 30 कितना होता है √3. स्क्वायर कितना हुआ 3. अगेन द आंसर इज 1. फॉर रेस्ट ऑफ द एंगल्स इट इज अ होमवर्क फॉर यू. ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है. समझ आया? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है. डू राइट टू मी. अच्छा लगा बुरा लगा डू गिव मी दी फीडबैक. आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ. अगर नहीं कुछ समझ आया, कुछ दोबारा जानना चाहते हो, लेट मी नो. आई विल मेक अगेन अ वीडियो. जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा लाइक करोगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा. आई विल मेक मोर क्वालिटी कंटेंट ऑन मैथ्स फॉर यू. Just one thing before parting ways. This trigonometry is just the basic. For 10th class, I think all this was covered in 10th class. I'll move to the intermediate level now. Please don't miss my next video. I'll be covering a very important topic, periodicity, plus how to calculate these trigonometric ratios of multiple angles. Any angle, or I would call it. You will be able to calculate this ratio for any angle, not just the 5 that are written over there. Any angle, you'll be able to calculate. Periodicity, how do they plot on the graph? I'll be covering these topics in my next video. Please don't miss that out. Thank you so much everyone.